Okay, good afternoon. Yes, good afternoon. Okay, am I audible to all? Yes, sir. Okay. So again, we would just start with revising the concepts that we have studied previously. So we have studied first of all virtual function, and yesterday we studied about virtual base classes. Okay. So anyone can just unmute their systems and can just give me the basic definition, or on the chatting window we can have that what is virtual function and what is virtual base classes. Then today we would move ahead. Okay. So 5 minutes we would just revise. Yes, anyone? Okay. So a virtual function is a function that is declared in a base class and re-declared in a derived class is called as a virtual function. Then secondly, yesterday we have seen about the virtual base classes. So first of all, why was the reason for there to use virtual base classes? So the main reason for using a virtual base classes was to avoid ambiguity. Ambiguity arises in the sense yesterday we have seen in case of diamond shaped inheritance. Diamond shaped inheritance is similar to our hybrid inheritance. That is, it was a combination of multiple and hierarchical inheritance. Means there were two types of inheritance were present. That is, we have seen yesterday that parent has two childs, and from that child they had a grandchild. So in this way, what happened? A parents have a certain property such as they have a data member such as get data, or a base data member, or any name you can give to that particular thing. What would happen? The child would inherit that properties, and whenever the grandchild would multiple inherit them, then what would happen? The two copies of that base data or get data data member was present with that particular grandchild. So what would happen? Compiler was confused as two copies were present of the same thing. So this type of a condition is called as ambiguity. So in order to avoid this type of a confusion, we make use of virtual base classes. So the basic definition of virtual base classes would be it shares only a single copy with the entire program. Whenever we declare a particular class as virtual, so what would happen? Only one copy of that particular class would be created. If only one copy is created, then no matter how many times you inherit them, what would happen? Only a single copy would be present with each and every class. So in this way, we are going to avoid the ambiguity. Okay. So someone yesterday asked me, sir, can we declare it at the starting such as virtual class base? So no. First of all, we need to first of all declare and define a single class. That is, the base class has to be perfectly defined. The same we know how to declare a particular class such as with the help of class keyword and followed by the name of the classes. But if we want to create a copy, then copy would only be created only if we are inheriting it. If we are not inheriting it, then there is no use of creating a virtual class. So that is the reason whenever that particular class is going to be inherit multiple number of times, at that time only we are going to declare it as virtual. Okay. And most of the time that is the reason we won't be declaring it at the start. It would only be used when it is inherited n number of times. Okay. So in this way, we are going to study, or this is the simple definition of our virtual base classes. Then we have studied something called as abstract classes and pure virtual functions. Abstract classes we all know. Abstract class is a class that can only be defined, but it cannot be used. Or in another sentence or another sense, it can be called as a class of which we cannot create an object. एक ऐसी क्लास जिसका अपन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके. और अगर कोई क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाने का है तो देयर आर टू वेज. एक तो आप क्या करो, उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दो. प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना मतलब कैसा करते हैं अपन? वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन पता है अपने को. वर्चुअल, रिटर्न टाइप, द नेम ऑफ द फंक्शन एंड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. सिर्फ उसके आगे अपन उसको क्या कर देंगे? इक्वेट टू जीरो कर देंगे. अपने को पता है जीरो की कुछ वैल्यू ही नहीं रहती है. जीरो इज जीरो. ओके. तो उस तरीके से क्या करेंगे? अगर कोई फंक्शन को प्योर बनाना है
मतलब प्योर कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो उसको सिंपली क्या कर देंगे अपन, वी वुड सिंपली डिक्लेयर देम एज जीरो। तो अपन क्या लिखेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन जब भी आपको बनाना है तो वर्चुअल फंक्शन को क्या इक्वेट कर देते हैं अपन, जीरो इक्वेट कर देते हैं। फिर इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जरूरी है कि अपने को हर एक इसमें या डिक्लेयर या डिफाइन करना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा कि जो एक बेस क्लास के अंदर तो आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया, तो वो क्लास तो ऑटोमेटिकली कौन सी क्लास बन गई, एब्स्ट्रैक्ट बन गई। नाउ कम्स अ सिनेरियो कि भाई मेरे पास 4 डिराइव्ड क्लासेस है, और अगर चारों डिराइव क्लासेस में मैंने क्या किया, वो जो मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन था उसको डिफाइन नहीं किया, मतलब मैंने उसको यूज ही नहीं किया। अगर जैसा इनहेरिट कर रहे हैं, जस्ट गेट माय पॉइंट क्लियरली, डिराइव्ड क्लासेस, ओके, डिराइव्ड क्लासेस बोले तो जो वो क्लास को इनहेरिट करेंगे। एक नॉर्मल क्लास रही तो उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, इट वुड बी अ डिराइव्ड क्लास। अगर वो डिराइव्ड क्लास ने वो फंक्शन को अगेन डिफाइन नहीं किया तो वो क्लासेस भी क्या बन जाएंगी, ऑल दोस क्लासेस वुड बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके क्लियर। अगर उन्होंने वो मेथड को रीडिक्लेयर कर दिया या रीडिफाइन कर दिया तो फिर दे वोंट बी अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, they can be used as a normal classes. Get my point? This point has to be remembered. ये अपन ने कल पढ़ लिया था, that is abstract classes and pure virtual functions. Are you getting what I am trying to say here? समझ में आ रहा है कि बेटा जितना पढ़ रहे हैं अपन? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो बेटा आज टुडे अपने को पढ़ना है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स, फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस। ओके, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लासेस पे अपन आज अपना पूरा वो करेंगे। Okay. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फ्रेंड फंक्शन क्या रहता है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये पढ़ा था अपन ने, इसके अंदर ओवरलोडिंग पढ़ा था सेकंड यूनिट में, तो इसमें एक आधा पार्ट जो था वो फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड था। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रेंड कीवर्ड, फ्रेंड किसको बोलते हैं अपन? यस, फ्रेंड किसको बोलेंगे अपन? यस, फ्रेंड फंक्शन, anyone can just unmute their systems and we can have a discussion, so it would be good, then it would help me to understand whether you are understanding the concepts or not. Yes, Ayush is there, many, मयूरी इज देयर। ओके मयूरी, सर आशीष और इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमारे से पूछ ही नहीं रहे, मतलब क्लास के अंदर मोनोटोनस नहीं रहता था, एवरीबॉडी ऑफ यू वर प्रेजेंट सो आई कैन क्वेश्चन एनीबॉडी। यस, तो गर्ल्स साइड में से कोई आंसर देगा? यस, फ्रेंड फंक्शन, अगर इसका आंसर नहीं आ रहा ना तो घर पे जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ओके, और यू कैन जस्ट गिव द आंसर इन चैट विंडो। फ्रेंड फंक्शन किसको बोलते हैं? उसको एक्सेस कर सकता है। ओके गुड, अ फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लास, मतलब सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि भाई फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन रहता है जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं रहता, बट इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। जैसे आपको मैं बार बार क्लास में भी एग्जांपल देता था कि भाई अपना जो मोबाइल फोन रहता है तो वो कैसा रहता है, अपने फ्रेंड को पूरा एक्सेस रहता है उसमें का, बट अपने पेरेंट्स को भी नहीं देते अपन, तो उस तरीके से फ्रेंड को का एक्सेस है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा पूरा का एक्सेस है। तो इन द सिमिलर सेंस अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन that can access both the private and protected data of a class। पब्लिक डेटा तो सबको एक्सेसिबल ही है, पर फ्रेंड फंक्शन जो रहता है वो क्लास का पार्ट नहीं रहता, मतलब आपके घर में जाके वो रह नहीं सकता। अगर फ्रेंड बोलेगा भाई लॉकडाउन है, 3 महीने का लॉकडाउन है, मैं जाके रहता, तो आपके घर में आके रुकाएंगे क्या आप? अगर बहुत ही परेशानी है तो ठीक है, पर उस तरीके से कैसा रहता है, ही कैन नॉट बी लिविंग इन योर हाउस फॉर एवर। तो उसी तरीके से कंसेप्ट रहता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लास बट इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ अ क्लास। तो सिमिलरली टुडे अपन आज देखने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन। तो उसके अंदर बेसिकली बेटा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इट इज आज हाउ फ्रेंड एक्ट्स एज अ ब्रिज। ओके, तो एक जो कंसेप्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी फ्रेंड एज अ ब्रिज फंक्शन। फ्रेंड एज अ ब्रिज फंक्शन में क्या करने वाले हैं अपन, एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे। इट इज गोइंग टू कंटेन 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड द 2 आर्ग्यूमेंट्स वुड बी ऑब्जेक्ट्स, और वो जो 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे वो अलग अलग क्लासेस के रहेंगे। मगर मतलब अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर 2 क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी, तो मेरा फ्रेंड फंक्शन जो रहेगा उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक ऑब्जेक्ट रहेगा क्लास ए का और एक ऑब्जेक्ट रहेगा क्लास बी का। तो इस तरीके से क्या होगा, माय फ्रेंड फंक्शन वुड बी एबल टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस।
क्लास ए का भी एक्सेस कर पाएगा और क्लास बी का भी, तो दिस वुड बी एक्टिंग एज अ ब्रिज, तो इट इज कॉल्ड एज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड एज अ ब्रिज। तो अपने को फ्रेंड फंक्शन तो पता ही है, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन एक्सेस both private and protected data of a class, though it is not a class member, वो class member नहीं भी रहता है पर उसको क्या रहता है, it has access to all the data। okay, तो अपन उसका theoretical part पढ़ लेते हैं, फिर program देखेंगे, then we would start with friend classes and we would stop। okay, तो आ जाते हैं अपन friend functions पे। what is a friend function? definition बार बार देखिए अपन ने, a friend function is a special function that can access and modify private or protected data member of a class, is not a member function, that is it is not in the scope of the class to which it has been declared as friend। Since it is not in the scope of the class, it cannot be called using object of that class। मतलब नॉर्मल फंक्शन के जैसा अपन उसको इन्वोक कर सकते। मेरे को अगर मेरा फ्रेंड फंक्शन का नाम है, जैसे डिक्लेयर कैसे करते फ्रेंड फंक्शन, सिर्फ फंक्शन से पहले डिक्लेरेशन पे अपन लिख देते फ्रेंड, बाकी नॉर्मल डेफिनेशन वुड बी सेम एज अ नॉर्मल फंक्शन। अगर सपोज मेरे फ्रेंड फंक्शन का नाम है FRIEND फ्रेंड फंक्शन, मेरे फ्रेंड फंक्शन का नाम है, तो मेरे को अगर उसको कॉल करना है, कॉल कहाँ से करते हैं अपन, वी ऑलवेज कॉल इट फ्रॉम मेन, तो अपन डायरेक्टली कैसा कॉल करेंगे उसको, उसके नाम से। मेंबर फंक्शन रहता तो अपने को ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे याद है ना अपने क्लास का, मेरा मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, तो मेरे को पहले क्या लगेगा, वो क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। सपोज मेरी क्लास का नाम था ए और मेरा मेथड उसमें से कॉल करना है मुझे डिस्प्ले, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ए डॉट डिस्प्ले। पर फ्रेंड फंक्शन जब भी मुझे कॉल करना है तो आई कैन डायरेक्टली कॉल इट विद द नेम, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ उसको नाम से। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ मेंबर, वो क्लास का पार्ट ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉर्मली कॉल इट विद द हेल्प ऑफ अ directly with its name। Unlike member function, it cannot access the members directly and has to use an object and the dot operator। मतलब member function के इसमें आपको object और dot operator लगता है, पर in case of friend function you can directly access them। It can be declared either in public or private part of a class without affecting its meaning। आप कहीं भी declare कर सकते हो friend को, public, private, etc। Usually it has an object as arguments। A class has to specify in its declaration who all are its friends। मतलब अगर मैंने क्लास बना लिया क्लास ए, तो अगर उसके अंदर मुझे कोई फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो मेरे को वो क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन से पहले आई वुड जस्ट स्पेसिफाई अ फ्रेंड कीवर्ड, और जो फंक्शन से पहले फ्रेंड लिखेंगे वो फंक्शन क्या बन जाएगा, फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा, और सेकंड प्रॉपर्टी ये रहती है कि भाई इट इज नॉट अ मेंबर, वो मेंबर नहीं रहता है। ओके, तो अब अपन आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जिस पे क्वेश्चन आता है, डेट इज व्हाट इज फ्रेंड एज अ ब्रिज। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड एज अ ब्रिज में क्या करने वाले हैं अपन, एक क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और वो फ्रेंड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक आर्ग्यूमेंट एक क्लास का रहेगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरी क्लास का रहेगा। तो जस्ट इफ वी वांट अ फंक्शन टू ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस, then the function will take objects of two different classes as arguments and operate on their private data। In this situation we can use a friend function that can act as a bridge between two classes। okay, तो यहाँ आ जाते हैं अपन, जस्ट देख लेते हैं भाई क्या कंसेप्ट है ये। तो इसके अंदर अपन एक क्लास बनाने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था दो क्लासेस बनाने वाले अपन, एक रहेगा क्लास बीटा और एक रहेगा क्लास अल्फा। ओके, तो क्लास बीटा और क्लास अल्फा अपन देखने वाले थे। तो उसके अंदर जैसे ही अपन आते हैं, तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, आप देखेंगे तो अपन ने ऊपर की जो क्लास बीटा थी उसको सिर्फ डिक्लेयर करके रख दिया अपन ने। क्लास बीटा जो है उसको अपन ने बाद में डिफाइन किया है, नीचे आप देखेंगे क्लास बीटा नीचे डिफाइन की हुई है, पर मैंने क्या किया, अल्फा से पहले आई हैव रिटन बीटा। ये अपन देखेंगे बाद में, आपने मेरे को आंसर देना कि वाई बीटा को अपन ने ऊपर डिक्लेयर किया नीचे क्यों नहीं। तो जैसे अपन नीचे आते तो क्लास अल्फा के अंदर अपन ने एक डेटा मेंबर लिया है प्राइवेट डेटा नाम का, और दूसरा अपन ने ये क्या है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा को अपन ने वैल्यू असाइन कर दी, डेट इज अगर डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं देता है तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएंगी, और अल्फा के ऑब्जेक्ट को इट वुड बी 3। फिर उसके अंदर अपन ने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फ्रेंड इंट फ्रेंड फंक्शन, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट लिए। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ उनके रिटर्न टाइप्स लिख के रख दिया। जैसा पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्लास अल्फा का रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा इट वुड बी ऑफ क्लास बीटा। ओके, तो इन दिस वे फ्रेंड फंक्शन अपन ने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको डिक्लेयर करते टाइम पे आप क्लास के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं, पर मैंने क्या किया, एज इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, तो आई एम डिफाइनिंग इट आउटसाइड बोथ द क्लासेस। ये अपनी पहली क्लास खत्म होगी। पहली क्लास में क्या किया अपन ने, सिर्फ एक फ्रेंड फंक्शन ले लिया जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स लिए अल्फा और बीटा। ओके, और एक अपना मेन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर लिया, जिसके थ्रू मैंने क्या किया, अपना जो डेटा मेंबर है उसको आई हैव इनिशियलाइज्ड इट टू एज 3। ओके, फिर अपनी सेकंड क्लास है क्लास बीटा,
क्लास बीटा के अंदर अगेन मैंने एक डेटा मेंबर लिया डेटा नाम का, और बीटा का मैंने अगेन एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर एक बना के रख दिया अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो क्या कर रहा है डेटा को असाइन कर दे रहा है 7। तो अगर अपन देखें तो दो कंस्ट्रक्टर के मैंने अलग अलग इसमें बताया। पहले वाले इसमें जो है इट इज अ नॉर्मल सिंटेक्स डिक्लेरेशन, सेकंड इसमें सिर्फ सिंटेक्स अलग है, द वैल्यू वुड बी सेम बीटा। फिर जैसा पहले अपन इसमें लिखते थे कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ डायरेक्टली या डिफरेंट सिंटेक्स है जिसके थ्रू आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है बीटा कोलन डेटा ब्रैकेट के अंदर 7, मतलब डेटा इज इक्वल टू 7। अगर आप चाहे तो आप पहले सिंटेक्स के थ्रू भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपके बताने के लिए मैंने लिखा है कि भाई दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, देन इसके अंदर अगेन अपन ने लिख दिया फ्रेंड फंक्शन अल्फा बीटा, अगेन वी हैव रिटर्न हियर। ओके, ये दोनों के अंदर अपन ने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं अपन ये एक्चुअल में मेथड कर रहा क्या है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर आया डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने उसको डिफाइन करा, तो मैंने लिखा है रिटर्न टाइप। इसके अंदर अपन ने क्लास नेम क्यों नहीं लिखा है? अपन ने देखा था क्लास के बाहर कुछ भी लिखते थे अपन तो उसका सिंटेक्स क्या रहता था, रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन फंक्शन नेम, बट इट वाज ओनली फॉर मेंबर फंक्शन। वो किसके लिए था? सिर्फ मेंबर फंक्शंस के लिए था। अपने को पता है फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, क्लास के बाहर जब भी आप उसको डिक्लेयर डिफाइन कर रहे हो तो अपन ने क्या किया, उसको आपको एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ती है फ्रेंड सिर्फ डिक्लेयर करते टाइम पे, डिफाइन करते टाइम पे आपके नॉर्मल यू कैन राइट इट डाउन। तो यहाँ सिंपली अपन ने लिखा रिटर्न टाइप इंट फंक्शन नेम फ्रेंड फंक्शन, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट, एक अल्फा ए कॉमा बीटा बी। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो अपन ने लिखा है रिटर्न टाइप, अपन ने इंट देखा है मतलब मेरे को एक इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, तो मैंने इधर लिखा है रिटर्न ए डॉट डेटा। जैसे अपन ए डॉट डेटा में आता है तो अपने ने देखा है कि भाई ए डॉट डेटा की वैल्यू जो भी रहेंगी तो इट वुड बिकम कंस्ट्रक्टर से बाय डिफॉल्ट अगर रहा, यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी उसकी, तो इट वुड सिंपली बिकम 3, और बी डॉट डेटा की वैल्यू सिंपली बिकम 7। तो अपना आंसर जो आएगा तो वो आ जाएगा 10। ओके, तो इसी तरीके से फिर अपन ने क्या कर दिया, इसके थ्रू एक एडिशन की वैल्यूज दे दी मैंने दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से ये हो गया कंसेप्ट अपना फ्रेंड एज अ ब्रिज। मतलब फ्रेंड एज अ ब्रिज फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट रहेंगे और वो दोनों आर्ग्यूमेंट वुड बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। दिस सिंपल कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड एज अ ब्रिज। ओके, इसमें एक चीज याद रखना बेटा कि जब भी आपके पास जितनी क्लासेस है वो क्लासेस में दोनों को डिक्लेयर करना है। जैसा यहाँ मेरे पास क्लास अल्फा था तो मैंने इसके अंदर भी फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया, क्लास बीटा है तो उसके अंदर भी मैंने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्लास बीटा मेरे को पहले क्यों डिक्लेयर किया मैंने, तो इसका बेटा आंसर ये है कि अगर मैं इसको डिक्लेयर नहीं करता, इसको कमेंट कर देता और सिंपली लिखता क्लास अल्फा, जैसे ही मैं इसको रन करने टाइम पे जाता तो यहाँ बीटा नाम का एक वेरिएबल उसको मिलता कंपाइलर को। तो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये बीटा क्या है, क्योंकि बीटा अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ, वो तो लाइन के नीचे था ना। तो इसलिए कंपाइलर अपने को एरर ना दे कि व्हाट इज दिस वेरिएबल बीटा, तो इसके लिए क्या करना पड़ा अपने को, एक क्लास बीटा ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर करके रखनी पड़ी। अभी क्लियर? मैं काय की बात कर रहा हूँ, रनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। रन टाइम पे मेन फंक्शन में जाता है, कंपाइल टाइम में जब भी जाता है तो लाइन बाय लाइन वो सिंटेक्स एरर सिंटैक्टिकल एरर ये चेक करते हुए चलता है। तो उसने जैसे ही देखा भाई अगर वो लाइन बाय लाइन जाता था अल्फा बीटा, अगर मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करता तो मुझे यहाँ एरर देता था। व्हाई इट वुड गिव मी एन एरर, बिकॉज फ्रेंड फंक्शन के अंदर अपन ने एक नया वर्ड लिखा है अल्फा कॉमा बीटा, उसको बीटा की वैल्यू ही नहीं मिलती। इफ यू वांट टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर बीटा तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ बीटा को जो है ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आर वी क्लियर व्हाई दिस पर्टिकुलर बीटा वाज यूज्ड? ओके, तो अब आ जाते हैं अपन अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर क्या किया मैंने, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, एक अल्फा ए, तो ये जैसे ही अपन ने किया तो ये इनिशियलाइज होने के लिए कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। तो जैसे इनिशियलाइज होने के बाद ये कंस्ट्रक्टर के लिए जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 3। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाया अपन ने बीटा बीवी, ये भी तो अपन देखे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों में बना के रखा है अपन ने, बीटा क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा डिफॉल्ट वाले के पास, तो वहां इसको इनिशियलाइज होके वैल्यू वुड बिकम 7। ओके, ए की वैल्यू 3 हो जाएंगी और बीबी की वैल्यू 7 हो जाएंगी। देन अपन ने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ टू डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा इज फ्रेंड फंक्शन ए कॉमा बीबी एंडल। मैंने डायरेक्टली यहाँ फ्रेंड फंक्शन कॉल कर लिया सी आउट में। व्हाई? बिकॉज इसका आंसर जो है वो इंडीजर है। क्लियर? तो यहाँ मैंने बोला था आपको सी आउट के थ्रू फंक्शन कॉल नहीं कर सकते अपन। क्यों कॉल नहीं कर सकते? अगर उसका रिटर्न टाइप वॉइड था, पर यहाँ इसका रिटर्न टाइप अगर अपन देखें तो इट इज इंट, मतलब मेरे को इसका आंसर क्या मिलने वाला है, एक इंडीजर वैल्यू मिलने वाली है और इन शॉर्ट 10 आंसर मिलने वाला। तो मेरे को इसका आंसर मिलेगा सी आउट एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट डेटा इज 10। ओके, उसके बाद स्पेस आएंगे, वी आर फिनिश। अभी क्लियर? ओके, तो इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ एंड चैटिंग विंडो में
your own words, just tell me what do you understand by this particular an exam इसको फ्रेंड एज अ ब्रिज. व्हाट इज फ्रेंड एज अ ब्रिज? इसका आंसर दीजिए, फिर अपन आगे जाते हैं फ्रेंड क्लासेस पे, उसके बाद अपन स्टॉप हो जाएंगे. व्हाट इज अ फ्रेंड एज अ, ओके व्हाट इज फ्रेंड? Friend function act as a bridge between two classes. Beta, how does it act as a bridge? Yes. Yes, but how does it act as a bridge? It can access both the data members of a class. Okay, good. इसको अपन इधर साइड में रखते हैं और एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं. फ्रेंड एज अ ब्रिज. ओके. Both the data members of a class. Yes. किसी को क्वेश्चन है क्या कुछ? आपको बेटा किसी को क्वेश्चन है तो आई एम नॉट एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली. आप क्या करो, चैट विंडो पे मैंने ओपन रखा है, यू कैन जस्ट टाइप इट देयर, तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं क्या करना है. बेसिकली उससे पहले क्या करता हूँ मैं, बेसिकली रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड एज अ ब्रिज करना क्या है अपने को. ओके. ओके. फ्रेंड फंक्शन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लास एंड एज अ ब्रिज. नो बेटा, प्राइवेट तो उसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है. जैसा शिवानी ने इधर लिखा है, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस हेंस एक्ट एज अ ब्रिज. इसमें एक्ट एज अ ब्रिज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो बेटा कीवर्ड की प्रॉपर्टी ही है. अपन ने पहले भी पढ़ा था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर भी कंसेप्ट सेम था, तो उसमें अपन ने ब्रिज नहीं बोला था उसको. फ्रेंड फंक्शन की तो प्रॉपर्टी है, कीवर्ड फ्रेंड जहां भी आ जाता है ना, तो वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस ही कर देता है. पर जैसे ही अपन फ्रेंड एज अ ब्रिज बोलते हैं, तो यहाँ क्या किया था उसने, फ्रेंड फंक्शन के अंदर उसने दो आर्ग्यूमेंट लिए थे. इट हैज टेकन टू आर्ग्यूमेंट, वन वाज ऑफ क्लास 1 एंड अनदर वन ऑफ क्लास 2. मतलब एक्चुअली ब्रिज किसके बीच में बन रहा था, दो क्लासेस के बीच में. क्या भाई दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर दे रहा था. क्या भाई विद द हेल्प ऑफ टेकिंग two objects, one object of one class and one object of another class. That was the reason we are calling it as a bridge. Okay. तो एक मिनट इसको यहाँ अपन लिख के देख लेते हैं. फ्रेंड एज अ ब्रिज का फर्स्ट, इट इज एक्टिंग फ्रेंड एज अ ब्रिज because it is using two objects first of all it is using two objects of different classes. एक तो अलग अलग ऑब्जेक्ट दो क्लासेस का रख रहा है, उसके थ्रू इट इज ज्वाइनिंग देम. ओके. और सेकंड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए बेटा, which is operating on object of two different classes. चलो very good अश्विनी. Okay, all of you have given the answers, very good. तो अपन सिर्फ बेसिकली उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं अपन ने. फ्रेंड एज अ ब्रिज जब भी अपन बोलते हैं ना, तो फ्रेंड एज अ ब्रिज के अंदर अपन उसको ब्रिज इसलिए बोल रहे हैं कि भाई वो जो फ्रेंड फंक्शन जो रहेगा अपना, इट इज गोइंग टू यूज टू ऑब्जेक्ट्स. और वो ऑब्जेक्ट अगर एक ही क्लास के रहते तो अपन बोल नहीं सकते थे कि भाई वो दो क्लासेस के बीच में ब्रिज बन रहा है. वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, वो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर पाता था. पर उसको ब्रिज इसलिए बोल रहे हैं अपन कि ये जो फ्रेंड फंक्शन है अपना, this friend function is going to have two objects because it is going to use two objects, or it is going to be using, or it is using
टू पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, टू पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, या फंक्शंस के जो पैरामीटर रहेंगे इट वुड बी बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट क्लासेस। ओके, सेकंड चीज ये याद रखना कि जो फ्रेंड फंक्शन है दो क्लासेस का है ना, तो यू शुड डिक्लेयर इट इन बोथ द क्लासेस। ओके, और तीसरी चीज, उसको कॉल करते टाइम पे आपको कुछ लगेगा, फ्रेंड फंक्शन जब भी अपन कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट लगेगा क्या? नो, नो ऑब्जेक्ट टू कॉल इट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ मेंबर फंक्शन। याद रखना कि वो मेंबर फंक्शन नहीं है, इसलिए उसको कॉल करने के लिए लगता नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि पहली क्लास के अंदर जब भी मैं फ्रेंड एज अ ब्रिज बना रहा हूँ तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसको ऊपर आपको वो क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको वो एरर नहीं आएंगे, you won't get an error there. Okay, so always remember to declare second class whose object is a parameter in friend function. Okay, so these four things you should remember. पहला क्या, friend as a bridge जब भी होता है तो उसके अंदर पहला, why we called it as a friend as a bridge, because it is going to use two parameters in a friend function that are belonging to different classes. Second, it should be declared in both the classes, we should declare it in both the classes. And thirdly, जब भी कॉल करेंगे उसको तो नो ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। फोर्थली, जब भी आपके जो पैरामीटर्स रहते हैं फंक्शन के पैरामीटर, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे अलग अलग क्लास के। तो एक ध्यान रखना कि दूसरा ऑब्जेक्ट जैसा बीटा था, उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वो क्लास बीटा को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड एज अ ब्रिज? चैट में अगर आप यस या नो लिख के दे दो तो देन वी कैन अगेन मूव ऑन टू इट। ओके, समझ में आएगा क्या रहता है फ्रेंड एज अ ब्रिज? ओके, उमेश को समझ में आ गया फ्रेंड एज अ ब्रिज? चलो गुड, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो वेरी गुड, फ्रेंड एज अ ब्रिज आगे क्लियर। अब अपना आज का लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड क्लास। ओके, फ्रेंड कीवर्ड का तो अपने मीनिंग पहले ही पता चल गया। फ्रेंड क्या रहता है बेटा? फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, फ्रेंड एटसेट्रा, एनीथिंग जहां भी फ्रेंड कीवर्ड आता है उसका सिंपल मीनिंग ये रहता है कि इट कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ओके, तो उसी तरीके से कंसेप्ट आता है फ्रेंड क्लासेस का, कि क्या कर सकता हूँ मैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को मैं डिक्लेयर कर दूंगा एज अ फ्रेंड। सो व्हाट वुड हैपन, all the members of that friend class would be able to access the members of another class, such as friend classes are special classes whose all member functions can access and modify private protected data members of another class. However, a class has to specify in its declaration who all are its friends. Suppose an example is there, मैंने class Z करके बनाया, okay, एक क्लास Z करके बनाया, उसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, एक फ्रेंड क्लास X को जो है तो उसका फ्रेंड बना दिया। सिंपली अगर मेरे को कोई क्लास को फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड क्लास बनानी है, क्या करना पड़ता है, एक क्लास के अंदर मेरे को फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिंपली क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फ्रेंड क्लास X लिखनी पड़ेगी। उसके पहले सिंपली आई वुड नीड टू राइट डाउन अ कीवर्ड फ्रेंड। तो व्हाट वुड हैपन, दिस क्लास X would become a friend of this class। मतलब क्लास X उसकी फ्रेंड बन गई। इसका मतलब क्या रहता है, क्या all the member functions of X are friend to Z। इन सिंपल वर्ड्स, X के अंदर के जितने भी फंक्शन रहेंगे वो Z के डेटा मेंबर मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फ्रेंड क्लासेस। ओके, मतलब ये जो X जो रहेगा अपना क्लास, इट कैन सिंपली एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके, तो अपन आ जाते हैं एक फंक्शन, एक प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद अपन रुक जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या किया मैंने, एक क्लास अल्फा बनाया है, अल्फा के अंदर एक डेटा मेंबर डेटा वन बनाया प्राइवेट। पब्लिक के अंदर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जो क्या कर रहा है, डेटा वन को वैल्यू असाइन कर दे रहा है 99। इसके अंदर मैंने एक फ्रेंड क्लास बनाई है। फ्रेंड क्लास बनाने का सिंटेक्स पता है अपने को, सिर्फ क्लास डिक्लेरेशन से पहले फ्रेंड लिख देते हैं अपन। तो ये क्लास अल्फा की एक फ्रेंड है बीटा, तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया है फ्रेंड स्पेस क्लास स्पेस बीटा। तो व्हाट वुड हैपन, बीटा के जितने भी मेंबर मेथड्स या डेटा मेंबर्स रहेंगे दे कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस क्लास अल्फा। तो जैसे ही मैं बीटा के अंदर आया, क्लास बीटा के अंदर मैंने दो फंक्शन बनाए,
एक फंक्शन 1 बनाया है, फंक्शन 2 बनाया है, दोनों एक आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं। आर्ग्यूमेंट कौन सी क्लास के हैं? अल्फा क्लास के। ओके, आर यू गेटिंग? जो अपन ने किया था इससे पहले फ्रेंड एज अ ब्रिज का ही कंसेप्ट है। और फ्रेंड क्लास में क्या हो जाता है, जैसे ही आपने बीटा को बना दिया, मतलब इन शॉर्ट बीटा के ये डेटा मेंबर बन जाएंगे, डेटा 1 और डेटा 2 जो भी रहेंगे। तो इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, सिंपली इनकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अल्फा ए, मैंने इधर लिख दिया सी आउट फंक्शन 1 डेटा 1 इज इक्वल टू ए डॉट डेटा 1। फंक्शन 2 में भी सेम कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। फंक्शन 2 डेटा 1 इज इक्वल टू ए डॉट डेटा 1। तो मेरा इसका आंसर आएगा, जो भी मेरे इसकी वैल्यू आएंगी, जो आपके ऑपरेटर या सॉरी जो आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज होगा, जो वैल्यू से इनिशियलाइज होगा वो वैल्यू आएंगी। तो मैंने जैसे मेन में आया तो मैंने अल्फा ए के वैल्यू को इनिशियलाइज किया तो 99। ओके, यहाँ तो यहाँ भी हमें पहले बीटा को पहले डिक्लेयर करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पहले बीटा को डिक्लेयर अपन ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? आप वहाँ फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ शांतनु ने मुझे पूछा सर यहाँ भी हमें पहले बीटा को डिक्लेयर करना चाहिए। तो बेटा जैसे यहाँ बीटा आप देखेंगे तो इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हियर, डिक्लेयर ही कर रहे हैं ना अपन इधर। यहाँ कोई नया वेरिएबल नहीं आ रहा है, यहाँ अपन ने क्या किया, इन शॉर्ट इसको डिक्लेयर ही कर दिया ना। ओके, तो यहाँ अपन ने लिखा है क्लास फ्रेंड बीटा, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, एक बीटा क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करके छोड़ दिया, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि नाउ दिस क्लास बीटा इज अ फ्रेंड टू क्लास अल्फा। वो पहले केस में अगर अपन देखें तो इट वाज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं अपन। आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर पहले केस में बोले तो अपन ने पहले फंक्शन डिक्लेयर किया था, समझ रहे हो? फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट था बीटा, उसकी वैल्यू नहीं मिली थी मुझे, तो इसमें उस पर मुझे क्लास डिक्लेयर करनी पड़ी थी। यहाँ तो मैं पहली बार क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ, फ्रेंड क्लास बीटा। क्लियर? ऊपर मुझे क्लास बीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं डिक्लेयर यही कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ डिक्लेयर क्या कर रहा हूँ, आई एम सिंपली डिक्लेयरिंग हियर दैट क्लास बीटा इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास अल्फा। अभी क्लियर? पहले केस में जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई वो पहले केस में आपने क्यों लिखा सर, क्योंकि वो बेटा फ्रेंड फंक्शन था। फंक्शन के अंदर वो दो आर्ग्यूमेंट थे, अल्फा और बीटा। उसके आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा था उसे बीटा, वहां अपन क्लास डिक्लेयर नहीं कर सकते थे बीटा के लिए। फिर मैंने क्या किया, ऊपर क्लास डिक्लेयर करके रखा। यहाँ तो मैं सिंपली क्लास यही डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ मैंने क्लास बीटा डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो यहाँ जैसे ही अपन मेन के अंदर आते हैं, मेन के अंदर मैंने अल्फा ए इनिशियलाइज किया, तो ये इनिशियलाइज होने के लिए किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 99। बीटा बी में कोई अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डाला है तो कोई गार्बेज वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। फिर मैंने कॉल किया बी डॉट फंक्शन ए, तो ए की वैल्यू अपने को पता है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगी, डेटा 1, ए डॉट डेटा 1 की वैल्यू क्या है 99। तो जैसे फंक्शन ए में जाएगा तो मैंने इधर कॉल कर दिया ए डॉट डेटा 1। ए डॉट डेटा 1 अपने को पता है, जैसे मैंने कॉल किया था तो ये इसके पास चले गया था, ए डॉट डेटा 1 की वैल्यू हो गई थी 99। क्लियर? तो फंक्शन ए मेरे को 99 वैल्यू देगा। और सिमिलरली सेकंड फंक्शन, फंक्शन 2 भी मुझे क्या वैल्यू देगा, बी डॉट फंक्शन 2 ए। तो जैसे ए में आया मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया ए डॉट डेटा 1। ए डॉट डेटा 1 की इंटीजर वैल्यू क्या है 99, तो इट वुड प्रिंट सी आउट फंक्शन 1 डेटा 1 इज इक्वल टू 99 और C2 फंक्शन 2 डेटा 2 इज इक्वल टू 99। ओके, तो इस तरीके से अपना कंसेप्ट है फ्रेंड क्लासेस का। तो बेटा आप लोगों का टास्क ये रहेगा, अभी आप लोग ऑनलाइन तो बैठे ही हो, तो ऑनलाइन G++ के बहुत सारे वो अवेलेबल है कंपाइलर्स। आपके पास अगर Ubuntu सिस्टम नहीं होगा तो डायरेक्टली आपके वेबकैम पे जाओ और ये जो दो प्रोग्राम्स है बेटा इनको एग्जीक्यूट करके देखो, ठीक है? क्वेश्चन इस पे आता ही है। वन क्वेश्चन इज डैम श्योर ऑन फ्रेंड एज अ क्लासेस और फ्रेंड एज अ ब्रिज। फ्रेंड एज अ ब्रिज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फ्रेंड एज अ ब्रिज फंक्शन जो रहता है मैक्सिमम 99% ऑफ केसेस में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो व्हाट इज फ्रेंड एज अ ब्रिज? ओके, तो आज अपन यहाँ रुक जाते हैं। इसके बाद स्टैटिक फंक्शंस है। स्टैटिक फंक्शंस तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट जो पढ़ना था स्टैटिक फंक्शंस है। स्टैटिक फंक्शन अपन ने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है और कहीं ना कहीं सेकंड यूनिट में भी देखा था। सेम क्वेश्चन इसमें आया हुआ है जो मैंने आपको बोला था, स्टैटिक फंक्शन कैन बी आस्क्ड इन फर्स्ट यूनिट आल्सो एंड इन फोर्थ यूनिट आल्सो। सेम क्वेश्चन ये अपन ने क्लास के अंदर सॉल्व किया था, गेट नेम वाला। ओके, गेट काउंट वाला फंक्शन फर्स्ट यूनिट में जो सॉल्व किया था दैट इज अगेन आस्क्ड इन फोर्थ यूनिट। तो याद रखना स्टैटिक फंक्शन जब भी आएगा तो ये तो इसमें पूछ सकते हैं या तो कल अपन एक बेसिकली देखेंगे, और अगर टाइम परमिट तो फिर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट भी देख लेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी इनिशियलाइजेशन वाला कंसेप्ट देखेंगे। ओके, पर आज के लिए बेटा आर वी क्लियर विद फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस? जस्ट कमेंट यस और नो so that we can finish up with our session. अगर नहीं हुआ तो देन अगेन कल अपन और पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो गुड। ओके चलो बेटा गुड। बाकी समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको कोई चेंज लगता है ना बेटा तो यू आर फ्री टू गिव मी अ कॉल और यू कैन मैसेज मी प्राइवेटली, नो प्रॉब्लम देयर।
समझ में आ रहा है ना? इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक अपनी एक ही हो रही है कि भाई अपन इसको क्लास में रहते तो अपन जब के जब एग्जीक्यूट करके देख लेते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको खुद से थोड़े एफर्ट्स लेके इसको एग्जीक्यूट करके देखो। अभी ऑनलाइन कंपाइलर्स रहते हैं, जस्ट कंपाइल देम। ओके, सो इन दिस वे वी कैन लर्न। एक क्वेश्चन आया आयुष का, सर इज इट अलाउड टू डिफाइन क्लास बीटा इनसाइड क्लास अल्फा जस्ट लाइक वी डिक्लेयर इट? तो बेटा उसको फ्रेंड करके आप अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। एक क्लास अंदर डिक्लेयर करने के टाइम पे वो सिंटेक्स एरर तो नहीं देगा, पर उसका वो कुछ कंसेप्ट नहीं रहेगा। क्लियर? अगर आप चाहे तो क्लास के अंदर भी उसको कर सकते हैं, पर वो उसको फ्रेंड करके नहीं करेंगे। वो उसका जो रहेगा तो सिंटेक्स, कोई जी प्लस प्लस कंपाइलर में कहीं एरर देगा कि भाई दिस पर्टिकुलर क्लास इज और द सिंटेक्स डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज क्लास जब भी अपन लिखते हैं तो आप उसको पूरी उसकी बॉडी देनी पड़ती है। यहाँ इसमें कैसा रहेगा, ऊपर अपन ने लिखा था क्लास डिक्लेयर कर दिया था बाहर, तो वो केस में क्या हो जाएगा, सेमीकोलन देके अपन ने एंड कर दिया था, पर क्लास के अंदर जो आता है तो वो कंसेप्ट कहीं बन ही नहीं रहा है। क्लास के अंदर आप जब भी लिखते हो तो मैक्सिमम केसेस में यू ओनली राइट डाउन इन ऑर्डर टू मेक इट अ फ्रेंड। तो इसलिए अगर आपने इसके अंदर लिखा तो सिंटैक्स एरर तो कुछ नहीं देगा, पर उसमें काम कुछ नहीं आएगा अपने। जैसा फ्रेंड मैंने नहीं लिखा तो सिर्फ क्लास जेड लिख दिया, तो क्या होगा, आपने सिर्फ एक क्लास डिक्लेयर की, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। अपने को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, अगर इट शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा तो अपने को उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। आप क्लियर? तो इसको बोलते हैं अपने फ्रेंड फंक्शन। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। एक कंटेनरशिप का भी डेटा, आपने जो सवाल पूछा क्लास के अंदर क्लास, तो बेटा उसका एक एग्जांपल है थर्ड यूनिट का लास्ट वाला, आपने पढ़ना कंटेनर्स। कंटेनरशिप वाला रहता है क्रिएटिंग वन क्लास इनटू अनदर क्लास, वो भी आप कर सकते हो। तो देयर आर मेनी कंसेप्ट। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक ही चीज के अलग अलग करने के तरीके, जैसा यहाँ फ्रेंड के थ्रू किया, मैं चाह सकता था तो आपने जो क्वेश्चन किया क्लास के अंदर बीटा डिक्लेयर करके, यस आई कैन आल्सो डू इट। तो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट आई एम डिक्लेयरिंग और अज्यूमिंग और एक्सप्लेनिंग यू हियर। तो एक ही तरीके, जैसा आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था इनहेरिटेंस का, सर इनहेरिटेंस के थ्रू भी तो कर सकते, वर्चुअल फंक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे? तो इस तरीके से अपने अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू डू द सेम थिंग। यहाँ अपन फ्रेंड क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड देख लिया। जो आपका सवाल था, सर इट इज अलाउड टू डिफाइन क्लास डेटा इनसाइड क्लास अल्फा जस्ट लाइक वी डिक्लेयर इट, यस नो प्रॉब्लम, कर सकते हो आप लोग। ओके, तो इस पे क्या करो, जो भी पढ़ा रहा हूँ तो उसको एक बार जस्ट हैव अ लुक और इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, तो इट वुड बिकम मोर क्लियर। ओके, बस 1 मिनट बचा है अपने सेशन का। सो आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अगर आपको लगता है कि सर इस पर कुछ चेंज होना चाहिए, अपन ने ऐसा पढ़ना चाहिए, तो यू आर फ्री। प्रोग्रामिंग, सर आप प्रोग्रामिंग करके बताओ ज्यादा, तो अपन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो साथ में अगर कुछ करना है तो वी कैन ऑल्सो डू इट इन दिस वे। ओके, तो अपना टाइम खत्म हो रहा है, तो ओके, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए। चलिए फिर, गुड बाय।